Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Everyone is present. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, Good ma'am. afternoon. Yes, ma'am. Okay. So this is our tutorial lecture. So last lecture ला आपण काय डिस्कस केलं होतं? Limit test of iron, limit test of heavy metals. Okay, limit test of iron and limit test of heavy metal. So before we start our lecture, so give me the answer of a sources of impurity. So आपण आपलं लेक्चर स्टार्ट करण्याच्या आधी रिवाइज करूयात थोडं. So it is tutorial part. Sources of impurities. तुम्हाला हा बीट झालाय. त्याच्यामध्ये काय काय इन्क्लूड आहे? कोणाला क्लासिफिकेशन सांगता येईल? Raw materials. Method of manufacturing. Method of manufacturing. Method of hazard. Method of manufacturing. Method of Stability of product. मेन 4 क्लासिफिकेशन काय आहेत? Raw material. Method of manufacturing. Method of manufacturing. Product. Stability of products. ओके. सो फर्स्ट मध्ये सब क्लासेस नाही आहेत. सो फर्स्ट आहे रॉ मटेरियल. सेकंड मध्ये सब क्लासेस आहेत. किती सब क्लासेस आहेत? 5. ओके. फर्स्ट कोणता आहे? Reagent Reagent used. ओके. सो सेकंड Intermediate products. ओके. थर्ड Reagent to eliminated impurities. ओके. फोर्थ Solvents used. ओके. फिफ्थ Atoms Contamination during manufacturing process. ओके. सो नेक्स्ट थर्ड कोणता आहे क्लास? manufacturing hazards. Third. सो त्याच्यामध्ये सब क्लासेस किती आहेत? 5 class. ओके. कोणते कोणते आहेत? Contamination. Contamination from matter. Contamination by microbes, errors in manufacturing, errors in Storage and packing. ओके. सो नेक्स्ट लास्ट क्लास instability of products. सब क्लासेस सांगा. Chemical Chemical stability, physical instability, Temperature. ओके. गुड. सो नेक्स्ट आपण बघूया. आजचं ट्युटोरियल लेक्चर आहे. त्यासाठी आपण जे प्रिव्हियसचे जे बीट आहेत त्यांना आपण रिवाइज करतोय. सोर्सेस ऑफ इम्प्युरिटीज हे मेन आहे. सो इम्पॉर्टंट बीट आहे. सो त्यासाठी आपण त्याला रिवाइज करूया. क्लासिफिकेशन एकदा स्क्रीन वरती शो करते. परत एकदा क्लासिफिकेशन बघा आणि ह्या रिलेटेड आपण युट्यूब वरचा व्हिडिओ बघूयात. सो त्याच्यावरून तुम्हाला अजून क्लॅरिफिकेशन येईल कन्सेप्टला. So see the classification. Sources of impurities. The various sources of impurities in pharmaceutical substances are as follows. So first main class आहे. So for in that first raw material. Next आहे method of manufacturing. Third आहे manufacturing hazard. Fourth instability of a product. So first जो class आहे main class त्याच्या under सब classification नाहीये. But बाकीचे जे 3 सब main class आहेत. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सब क्लासिफिकेशन दिसतं. सो फर्स्ट सेकंड जो आहे मेथड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. इन दॅट देअर इज अ सब 5 क्लासेस.
In that, first is a reagent used, next is intermediate product, third is reagent used to eliminate impurity, fourth is solvent used, and fifth is atmospheric contamination. And third main class, manufacturing hazard. In that, 5 subclass is there. In that, first, contamination from matter, second, cross contamination, third, contamination by microbe, fourth, error in manufacturing, and fifth is a error in storage and packaging. After that, last, fourth sub main class, instability of a product. In that, there is a 4 sub classification: chemical instability, physical instability, reaction with container, and last is a temperature. So हे complete classification sources of impurities आहे. मेन आहे हे तुम्हाला प्रत्येक इयरली ह्याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जातात. सो इथून पुढच्या फर्दर स्टडी मध्ये सुद्धा तुम्हाला सोर्सेस ऑफ इम्प्युरिटीज हे विचारलं जाऊ शकतं. सो नेक्स्ट ह्या रिलेटेड आपण व्हिडिओ बघूयात. आणि आफ्टर दॅट ह्या पूर्ण चॅप्टर मधला आपला एकच बीट राहिलेला आहे, लास्ट बीट, दॅट इज लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक. ते पण आपण आजच्या लेक्चरला कव्हर करूयात. सो त्यामुळे आजच्या लेक्चरला तुमचा चॅप्टर नंबर फर्स्ट हा कम्प्लीट होते. आणि ज्यावेळेस आपले रेग्युलर लेक्चर असतील नेक्स्ट, त्यावेळेस पासून आपण सेकंड चॅप्टरला स्टार्ट करूयात. स्टूडेंट्स, आज हम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी. मतलब पर्टिकुलर अगर हम कोई फार्मास्यूटिकल रिएजेंट या डोजेज फॉर्म अगर बना रहे हैं तो उसमें इम्प्योरिटी कहाँ से इनकॉर्पोरेट होती है, ये इम्प्योरिटी कहाँ से आती है, वो पढ़ेंगे. तो देयर आर द 7 फैक्टर्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्योरिटी. तो ये समझाने से पहले मैं आपको पहले आपके घर का एक बेस्ट एग्जांपल दूंगी. अगर हम कुछ स्वीट या मीठा बना रहे हैं तो वो कैसे बनाते हैं और उसमें इम्प्योरिटी कैसे आती है, वही एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आपको ये बाकी का क्वेश्चन पढ़ना है. सबसे पहले अगर हमको स्वीट मटेरियल बना रहे हैं तो उसके लिए लगता है रॉ मटेरियल. तो पहला पॉइंट हमारा रॉ मटेरियल है. जैसे कि हम बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल में क्या रहेगा, बेसन का आटा, शक्कर, घी, ये सभी क्या रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा. देन मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उसको कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले सॉल्वेंट लगेगा, मतलब वाटर लगेगा शुगर सिरप बनाने के लिए. नेक्स्ट इज द रिएजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग. उसको बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है, तो शक्कर, देन बेसन का आटा और जो भी ड्राई फ्रूट्स रहेंगे या घी लगेगा, वो सभी रिएजेंट्स. देन रिएजेंट यूज टू रिमूव इम्प्योरिटी. इसमें आप बोल सकते हैं जैसे शुगर सिरप हम बना रहे हैं, उसके ऊपर अगर शुगर अगर आपके कंट्रोल की इससे है या लोअर कॉस्ट की है तो उसके ऊपर ऐसे एक खराब लेयर आती है ब्लैकिश कलर की, तो उसको रिमूव करने के लिए उसमें दूध वगैरह डाला जाता है. आपकी मम्मी अच्छे से करती है. तो रिएजेंट यूज टू रिमूव इम्प्योरिटी, मतलब वो उसमें जो इम्प्योरिटी है उसको हटाने के लिए जो रिएजेंट्स यूज करेंगे वो. नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब जब चाशनी बन गई और बेसन भी भून लिया तो उसको मिक्स करेंगे. उसको प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली मिक्स करना है. अगर यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं किया तो उसके स्टोन या हार्डर ऐसे पार्टिकल्स बन सकते हैं, तो उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोला है. नेक्स्ट इज वेसल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मटेरियल ऑफ प्लांट्स. ठीक है, मतलब किस में बनाते हो, कढ़ाई में बनाते हो, तो वो क्या सब्जी जिसमें छोक दी वही कढ़ाई में बनाएंगे कि उसको नहीं, एक साफ सुथरा अच्छा स्टील का बर्तन लेंगे. पीतल का भी बर्तन ले लेंगे या तांबे का भी नहीं लेंगे, क्योंकि क्या होता है, सॉल्वेंट एक्शन होता है. आपने देखा होगा घर में अगर तांबे का बर्तन है तो उसके ऊपर अगर आप दही डाल रहे हो या नींबू का खट्टापन डाल रहे हो तो क्या होगा, क्लीन हो जाता है, उसकी इम्प्योरिटी निकलती है. तो वो इम्प्योरिटी आपके कंपाउंड में या जो मिश्रण है उसमें आएगी. तो दैट इज द वेसल इज द वेरी क्लीन एंड नीट होना चाहिए. एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, यस एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन. अगर आपको स्नीजिंग कफिंग है और वहाँ पे लड्डू बना रहे हो, वहाँ पे जोर जोर से छींक रहे हो, वहाँ पे खांस रहे हो, तो क्या होगा, इम्प्योरिटी उसमें इनकॉर्पोरेट हो सकती है. देन एडल्ट्रेशन, यस देसी घी की जगह अगर आपने डालडा अगर यूज किया, मतलब एडल्ट्रेट किया, देसी घी यूज कर सकते थे लेकिन आपने डालडा यूज किया तो उसमें टेस्ट में वेरिएशन आएगा. ठीक है, देन स्टोरेज, यस लास्ट इज द स्टोरेज भी उसका प्रॉपरली होना चाहिए. सेम एज इट इज ये सभी पॉइंट्स हम वन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक अ टैबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन जब बनाते हैं तब हमको ये पूरे पॉइंट्स का ध्यान रखना है. तो आपको वही पॉइंट्स में आपको ये 7 पॉइंट्स याद रखना है. तो हम अभी
आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें रॉ मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। तो देखिए, रॉ मटेरियल, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल में अगर कुछ इम्प्योरिटी रहती है तो वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ सकती है। इसलिए हमारा रॉ मटेरियल नीट एंड क्लीन एंड 99% वो प्योर होना चाहिए। तो देखिए वहां पे लिखा है, इफ द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द मटेरियल दे मे कम इन अ फाइनल प्रोडक्ट। अगर इम्प्योरिटी आपकी प्रेजेंट रहेंगी मटेरियल में तो वो कहाँ आएंगी? फाइनल प्रोडक्ट में आएंगी। वहां पे आपको एग्जांपल देना है। एग्जांपल इज द मस्ट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉक सॉल्ट। आपको पता ही है कि खाने का जो सॉल्ट है वो आपको कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है, रॉक सॉल्ट से मिलता है। तो इट कंटेन द ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। उसमें ट्रेसेस अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम है। फिर सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें आयोडीन डाला जाता है एंड देन आयोडाइज नमक हमारे मार्केट में अवेलेबल है। सेकंड, मेथड्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहला है वाटर। यस, वाटर, या आप इसको सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, सॉल्वेंट जो हमारा पॉइंट है। तो वाटर इज अ चीपर सॉल्वेंट। सबको पता है कि वाटर सिंपल आपको कहीं पे भी अवेलेबल रहता है, फ्री कॉस्ट में मिलता है। तो वाटर हम सॉल्वेंट करके यूज करते हैं। वाटर की जगह पे अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर लेते हो तो उस केस में आपके डोजेस फॉर्म की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। इसीलिए हमको वाटर ही मैक्सिमम तौर पे सॉल्वेंट करके लेना है। देखिए, वाटर इज मेनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन अ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। वाटर कंटेन द वेरियस आयन लाइक calcium, magnesium, chloride. This impurity come along with the water in a final product. सभी को पता है water containing the calcium, traces of phosphate रहता है उसमें, calcium, magnesium, chloride, ये सभी soil से related रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? water को purified water कर सकते हो and then use कर सकते हो formulation बनाने के लिए। अगर आपने plain water लिया तो traces of calcium and magnesium क्या हो सकता है? ये जो impurity है come along with the final product में आ सकती है। नेक्स्ट इज द रिएजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन सा रिएजेंट? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बट इट कंटेन द ट्रेसेस ऑफ लीड इंप्योरिटी। उसमें कौन सी इंप्योरिटी है? लीड इंप्योरिटी है। लीड मतलब मेटल की इंप्योरिटी है। और दीज इंप्योरिटी में कम इन अ फाइनल प्रोडक्ट। देखिए, सभी इसमें वही वर्ड कॉमन है। अगर आपके रिएजेंट्स में इंप्योरिटी है तो कौन सा वर्ड कॉमन है? These impurity may come in a final product. वो impurity आपके final product में आ सकती है। तो आपको यहाँ पे 2 ही वर्ड याद रखने हैं। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इट कंटेन द ट्रेसेस ऑफ लीड impurity। और लास्ट वाला सेंटेंस तो कॉमन ही है, These impurity may come in a final product। Then last, reagent used to remove impurity। ऐसे reagent जो impurity को remove करते हैं। कौन से reagent? पोटेशियम ब्रोमाइड लिया है। पोटेशियम ब्रोमाइड used to remove sulfate impurity। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या करता है? सल्फेट impurity को रिमूव करता है। बट पोटेशियम ब्रोमाइड कंटेन ट्रेसेस ऑफ बेरियम। बस पोटेशियम ब्रोमाइड में क्या है? बेरियम है, which may come in a final product। तो वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ सकता है। तो यस, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी हमने एनलिस्ट किया, उसमें से रॉ मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू। ओके, फर्स्ट 2 मेथड सगळ्यांना समजल्या व्हिडिओ थ्रू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. त्यांनी एक्झाम्पल कशाचं दिलंय? कशासोबत त्यांनी रिलेट केले? बेसनचा लाडू. बेसनचा लाडू. डालडा. सो तुमच्या इझी अंडरस्टँडिंग होण्यासाठी त्यांनी डेली लाईफ मधलं एक्झाम्पल दिलंय, बट एक्झाम मध्ये लिहिताना हे एक्झाम्पल लिहायचं नाहीये, फक्त तुम्हाला ते कन्सेप्ट ग्रास्प व्हावा ह्यासाठी त्यांनी सांगितलेलं आहे। जसं की आपण घरामध्ये एखादी प्रोसेस करतो त्यावेळेस ज्या ज्या गोष्टी आपण यूज करतो किंवा ज्या मेथडने आपण ते बनवतोय, प्रोडक्ट असेल किंवा एखादा फूड, सो लाईकवाईज ती प्रोसेस करताना बऱ्याचदा तिथं इम्प्युरिटीज येण्याचे चान्सेस असतात। सिमिलरली फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट प्रिपेअर करताना, फायनल प्रोडक्ट प्रिपेअर करताना त्याच्यामध्ये पण स्टेप वाईज प्रोसिजर आपण फॉलो करताना बऱ्याच ठिकाणी इम्प्युरिटीज येतात। सो फर्स्ट आहे रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल मध्ये जे पण तुम्ही रॉ फॉर्म मधून जे घेता
घेत आहात सो ते ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज येण्याचे चान्सेस आहेत. जसं की एखादं प्रोडक्ट बनवायचं आहे तुम्हाला, मग ते प्रोडक्ट बनवताना स्टार्टिंग जे मटेरियल आहे, ऍक्टिव्ह जे इन्ग्रेडियंट आहेत, हे तुम्हाला पाहिजे असतं. मग ते स्टार्टिंग मटेरियल तुम्ही कोणत्या ना कोणत्या नॅचरल रिसोर्सेस पासून तुम्ही घेत असता, डिराईव्ह करत असतात. सो त्यामुळे काय आहे, त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज येणार आहेत. त्याच्यासोबत त्या ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट सोबत अदर पण इम्प्युरिटीज तिथं इन्क्लूड होतात. त्यामुळे फायनल प्रोडक्ट जे आहे ते कंटॅमिनेट होतं. सेकंड आहे मेथड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग. त्याच्यामध्ये पहिला बीट आहे रिएजंट युज्ड. सो रिएजंट युज्ड मध्ये काय काय सांगितलंय? सो तुम्ही सांगा, व्हिडिओ तुम्ही बघितलाय, कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर झालाय? कसं एक्सप्लेन केलं होतं रिएजंट युज्ड? Speak fast. बघितलंय ना सगळ्यांनी व्हिडिओ? हो मॅम. Yes, ma'am. मेथड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये सगळे इंग्रेडियंट्स घ्यायचे. Solvents. ओके करेक्ट. रिएजंट युज्ड मध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की जे सॉल्व्हंट यूज करणार आहात तुम्ही, ते पण काय झालं, एका टाईपचं रिएजंट झालं. ते काय होऊ शकतं, कंटामिनेट होऊ शकतं किंवा त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज येऊ शकतात. जसं की फॉर एक्झाम्पल त्यांनी काय सांगितलंय, सॉल्व्हंट कोणतं? कढई कढई, स्वच्छची. चमचा. सो रिएजंट मध्ये ते येणार का? रिएजंट म्हणून सॉल्व्हंट म्हणून काय मेन्शन केलं होतं? Water. तुपाच्या ऐवजी डालडा वॉटर. ओके, ते तुम्हाला समजण्यासाठी त्यांनी फॉर एक्झाम्पल सांगितलं होतं. बट ऍक्च्युअली ज्यावेळेस तुम्हाला एक्सप्लेन करायचंय, तुम्हाला राईट डाऊन करायचंय आन्सर, तर तुम्ही हे या लँग्वेज मध्ये नाही लिहू शकत. सो रिएजंट युज्ड मध्ये काय येणार आहे, जे वॉटर आहे ते वॉटर तुम्ही मोस्ट कॉमन सॉल्व्हंट आहे, ते तुम्ही यूज करता फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये व्हेरियस प्रोडक्ट प्रिपेअर करताना. सो त्या वॉटर सोबत अजून फ्री आयन्स पण येणार आहेत. मग हे काय झालं, इम्प्युरिटी. सो रिएजंट युज्ड मध्ये जे पण तुम्ही सॉल्व्हंट यूज करणार आहात, एखादं सोल्युशन प्रिपेअर करण्यासाठी, एखादं कंपाऊंड, जे तुमच्याकडे जे ड्रग अवेलेबल आहे त्या ड्रगचं डो प्रिपेअर करण्यासाठी किंवा ते मिक्सिंग करण्यासाठी, सो ते काय ग्रॅन्युल प्रिपेअर करण्यासाठी, त्याच्यामध्ये डेफिनेटली आपल्याला सॉल्व्हंट ऍड करावा लागणार आहे. तो सॉल्व्हंट ज्यावेळेस तुम्ही यूज करता, त्या सॉल्व्हंट सोबत पण इम्प्युरिटीज येतात. सो फ्री आयन्स, फॉर एक्झाम्पल वॉटर मोस्ट कॉमनली युज्ड सॉल्व्हंट आहे, ज्याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही ते सॉल्व्हंट यूज करता व्हेरियस फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट प्रिपेअर करण्यासाठी, तर त्याच्यामध्ये त्या वॉटरमध्ये फ्री आयन्स, अदर फ्री आयन्स प्रेझेंट असतात. सो नेक्स्ट काय सांगितलंय अजून? सांगा फास्ट, का परत एकदा व्हिडिओ बघायचा आहे? बघूया. हो मॅम बघू. Yes. बघूया मॅम. ओके, परत एकदा व्हिडिओ शो करते, लिसन केअरफुली. सो ट्युटोरियल लेक्चर आहे, आपल्याला डिस्कस करायचे प्रिव्हियस झालेले पॉइंट. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी का। लास्ट लेक्चर में हमने सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी देखी, जिसमें वेरियस पार्ट्स हमने देखे, जैसे रॉ मटेरियल है, देन मेथड्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे, सॉल्वेंट, रिएजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड रिएजेंट यूज टू रिमूव द इम्प्योरिटी। ये 2 पार्ट हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं। रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मैंने इसमें आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि घर में आपकी जैसे मम्मी लड्डू बनाती है, तो उसका एग्जांपल दिया था, वो आप वो वीडियो में एक बार अच्छे से देख लीजिए।
यहाँ पे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात करें तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब व्हाट, अगर पर्टिकुलर दो चीजों को हम मिक्स करते हैं तो कोई तीसरी चीज बन जाती है जो हमको चौथी चीज चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि बेसन और चाशनी को एक साथ मिक्स किया तो उसके अच्छा एक मिश्रण बनना चाहिए जिससे हम अच्छे से लड्डू बना सके। लेकिन कभी कभी हार्डर स्टोन जैसे ऐसे गुठलियाँ बन जाती है, फिर मम्मी उसको ब्रेक करती है और वो चाशनी में उसको मिक्स करती है। तो दीज आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो वही है, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कम अलॉन्ग विद द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द बिटवीन द केमिकल रिएक्शन देयर इज अ सम चेंजेस। व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, IODID है, फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड बनाना है हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और पोटेशियम आयोडाइड से। लेकिन क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड is an intermediate product which may come in a final product। हमको पोटेशियम आयोडाइड बनाना था लेकिन क्या बन गया, आयोडेट बन गया। ठीक है, दैट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। हमको बनाना कुछ अलग था, पोटेशियम आयोडाइड बनाना था, लेकिन क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडेट। दैट विल बी अ थर्ड प्रोडक्ट, उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट इज द मटेरियल ऑफ प्लांट। मटेरियल ऑफ प्लांट सो बघा, फर्स्ट मध्ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मध्ये काय सांगितलंय, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मे कम अलॉंग विथ द फायनल प्रोडक्ट। जसं की फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आपल्याला प्रिपेअर करायचंय, ते प्रिपेअर करण्यासाठी आपण व्हेरियस रिएजंट सोल्युशन एकमेकांमध्ये आपण मिक्स करतोय। सो ते मिक्स केल्यामुळे काय होत आहे, त्यांच्यामध्ये केमिकल इंटरॅक्शन होत आहेत। तर ते केमिकल इंटरॅक्शन होऊन ते फायनल प्रेसिपिटेट आपल्याला तिथे देत आहेत। मग ते प्रेसिपिटेट सोबत काय होणार आहे, तिथं समटाइम्स ती रिएक्शन कंप्लीट होत नाहीये किंवा ती रिएक्शन मध्ये काय येतात, अदर्स आयन्स असल्यामुळे ते एकमेकांना इंटरॅक्ट होऊन अनदर कॉम्प्लेक्स त्या फायनल प्रोडक्ट सोबत तयार करतात। सो एक्झाम्पल बघा, इन द प्रिपरेशन ऑफ अ पोटॅशियम आयोडाइड फ्रॉम अ पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड अँड आयोडाइड। सो आपल्याला काय पाहिजे की आपल्याला फायनल प्रोडक्ट म्हणून पोटॅशियम आयोडाइड पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आपण स्टार्टिंग मटेरियल काय वापरतोय, पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड अँड आयोडाइड। ह्यांची रिएक्शन करून आपण पोटॅशियम आयोडाइड प्रिपेअर करतोय। बट त्यामध्ये काय होतंय, त्याच्यामध्ये इंटरमिडिएट तयार होते, म्हणजे अनस्टेबल असं कंपाऊंड किंवा अनस्टेबल असं कॉम्प्लेक्स आपल्याला तिथं अदर इम्प्युरिटीचं ऑब्झर्व होते, लाईक पोटॅशियम आयोडेट। सो पोटॅशियम आयोडेटचा आपल्याला कॉम्प्लेक्स त्या पोटॅशियम आयोडाइड सोबत तयार होताना दिसते। सो दिस इज द impurity due to intermediate product are formed during the reaction. So it is an intermediate product which may come in final product. तर फायनल प्रोडक्ट मध्ये अशा टाइपचे इम्प्युरिटीज आपल्याला बघायला मिळतात। म्हणजे जे प्रोडक्ट आपल्याला पाहिजे आहे ते प्रोडक्ट तयार होताना त्याच्यासोबत अदर अनस्टेबल इंटरमिडिएट पण तिथं क्रिएट होतात। नेक्स्ट बघा, मटेरियल ऑफ अ प्लांट। एग्जांपल दूंगी, जो आपके घर में तांबे के या पीतल के बर्तन रहते हैं, उसमें अगर खट्टी चीज अगर आप लेते हो, लाइक दही है या नींबू का जूस डालते हो, तो क्या होता है, वो बर्तन एकदम क्लीन होना लगता है। क्यों, जो उसकी इम्प्योरिटी है वो खट्टेपन के साथ निकलना स्टार्ट होती है। अगर आपने पीतल या तांबे के बर्तन में अगर दही लिया तो क्या होगा, जो बर्तन की पूरी इम्प्योरिटी है वो आपके कर्ड में आएगी, उसको बोला जाता है सॉल्वेंट एक्शन। तो सेम एज लाइक अगर कोई मेटल कंटेनर में अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर डालते हो, वो मेटल सॉल्वेंट एक्शन शो करके वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट करता है। तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी ऑफ द मेटल्स और इम्प्योरिटी ऑफ मटेरियल ऑफ प्लांट। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेसल हम बोल सकते हैं, वेसल्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वो ये वाला क्या होता है, द वेसल्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर जनरली मेड अप ऑफ मेटल्स। मेटल से बनते हैं, like a copper, zinc, nickel and aluminum. Due to the solvent action on a material of plant. Already मैंने बोला कि ड्यू टू द सॉल्वेंट एक्शन की वजह से क्या होता है, किस पे वो एक्शन होने वाली है, बर्तन पे, मटेरियल ऑफ प्लांट पे। द ट्रेसेस ऑफ मेटल कम इन अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट एक्शन। कुछ क्वांटिटी में जो मेटल है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ सकता है। उसका एग्जाम्पल बेस्ट इज अ वाटर पाइप। सभी को पता है वाटर पाइप, ये मेटल से बने रहते हैं बड़े बड़े। ठीक है, मे कंटेन द ट्रेसेस ऑफ लीड, वो मेटल में लीड रह सकता है, विच मे बी कंबाइंड इन अ फाइनल प्रोडक्ट। तो वो आपके वाटर में आ सकता है, क्योंकि आपको पता है वहां पे टंकी से अगर पानी छोड़ा तो पाइप
पाइप में कुछ ना कुछ पानी रहता है जब तक हम टैप बंद करते हैं। तो वो जो वाटर जो आपके पाइप में बचा है वो कितने घंटे रहता है, डिपेंड ऑन, जब तक हम टैप ऑन नहीं करते तब तक वो पानी वैसे के वैसे ही जमा रहेगा। तो वहां पे मेटल के साथ उसकी रिएक्शन होंगी, मे बी सम ट्रेसेस ऑफ लीड, वो पानी मेटल से पानी में आ सकता है और वो वाटर का अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, दैट इज द मेटल ऑफ प्लांट। नेक्स्ट इज द सो नेक्स्ट त्यांनी काय सांगितलंय, मटेरियल ऑफ प्लांट मीन्स काय, जे पण आपण व्हेसल किंवा जे पण कंटेनर आपण यूज करणार आहोत एखादं प्रोडक्ट प्रिपेअर करताना, सो सोल्युशन स्टोअर करण्यासाठी आपण बघतो की व्हेरियस ग्लासवेअर आपण यूज करतोय. लाईकवाईज ट्रिचरेट करण्यासाठी आपण मोर्टर अँड पेसलचा यूज करतो. सो हे काय झाले, वेसल झाले. सो ह्या वेसल थ्रू पण काय होते, इम्प्युरिटी त्या फायनल प्रोडक्ट मध्ये जाते. सो जर समजा ते जर वेसल्स मेटलचे बनलेले असतील तर ते मेटलची इम्प्युरिटी, सो ज्या मेटलने ते बनले त्याचे स्मॉल ट्रेसेस काय होणार आहेत आता आपल्याला फायनल प्रोडक्ट मध्ये ऑब्झर्व होतात. तर स्मॉल अमाऊंट मध्ये आपल्याला ते ट्रेसेस पण तिथं मेटलचे ऑब्झर्व व्हायला लागतात. जे पण आपण वेसल यूज करतोय, सो त्या वेसल मुळे काय होतंय, तिथं ते रिएजंटची आणि त्या वेसलची रिएक्शन होते, ते रिॲक्ट करतात मेटल सोबत आणि तिथं ते त्या रिएजंट सोबत मिक्स होतात फायनल प्रोडक्ट मध्ये आणि मेटलची आपल्याला तिथे इम्प्युरिटी दिसायला लागते. नेक्स्ट आहे एटमॉस्फेरिक कंटॅमिनेशन. एटमॉस्फेरिक कंटैमिनेशन, तभी एटमॉस्फेरिक कंटैमिनेशन मतलब अगर हम कुछ भी खाने की चीज बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली ढक के रखते हैं, या अगर कोई होटल में ऐसे खुले में वो चीज रखी है तो आप लोगे क्या, वहां से रोड चालू है, डस्ट आ रही है, कस्टमर छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो उस जगह के आपने खाने की चीज लोगे क्या, नहीं। वही सेम तो यहाँ पे भी मटेरियल को या प्रोडक्ट को ये कंटैमिनेशन हो सकता है। तो कौन सा कंटैमिनेशन देखिए, द एटमॉस्फेरिक कंटैमिनेंट लाइक अ डस्ट आ सकते हैं, आर्सेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड, पोलन ग्रेन्स, ये ग्रास से आ सकते हैं, एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर कहाँ से आएंगे, जब अगर बारिश का सीजन है, रेनी सीजन, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स रहते हैं तो वो वाटर वेपर में कंटैमिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आपके घर में सॉल्ट रहता है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, रेनी सीजन में सॉल्ट कैसा रहता है और समर में सॉल्ट कैसा रहता है। रेनी सीजन में एनवायरमेंट का जो वाटर ड्रॉपलेट है वो सॉल्ट सोक करता है बिकॉज इट इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, और जब आप सॉल्ट को उठाओगे तो इट विल बी सम मॉइस्ट, आपके हाथों को चिपकेगा वो। और वही अगर आप समर में देखोगे तो नमक ऐसे उठाओगे तो आपके हाथों से फिसलेगा, इट विल बी अ फ्री फ्लोइंग, बिकॉज क्योंकि एनवायरमेंट टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उसकी, वो टोटली ड्राई हो जाएगा और इट विल बी अ फ्री फ्लोइंग इन नेचर। तो वो एक वाटर एटमॉस्फेरिक कंटैमिनेशन में आता है। नेक्स्ट इज द एडल्ट्रेशन। यस, एडल्ट्रेशन का बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में क्लो जो रहती है, लवंग हम बोलते हैं ना लवंग। लवंग देखिए सूखे सूखे उसके रहते हैं पीसेस, तो वो, और दूसरा एक भरा वाला लवंग रहता है, उसको आप दोनों को चबा के देखिए, एक इसमें अच्छे से एसिड होगा या उसका कंटेंट होगा तो आपको तीखी लगेगी, या दूसरा अगर आप खा के देखोगे दांतों के नीचे चबाओगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो क्यों, क्योंकि दीज आर द क्लो विल बी एडल्ट्रेटेड। जो चीपर रेट की क्लो है उससे वो एडल्ट्रेट किया जाता है, या उससे जो इसेंशियल ऑयल से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो रॉ रेसिड्यूल है वो उसमें मिक्स किया जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एडल्ट्रेशन। देखिए एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, some of the pharmaceutical product may be adulterated with the cheaper substance। कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एडल्ट सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं या रिप्लेस किए जाते हैं जो सस्ते वाले कंपोनेंट्स है या चीपर सब्सटेंस है उससे, उसको बोला जाता है एडल्ट्रेशन। जिसमें एग्जांपल हमको लिखना है, पोटेशियम ब्रोमाइड में बी एडल्ट्रेटेड विद द सोडियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड है तो याद रखने में इजी जाएगा, तो पोटेशियम ब्रोमाइड इज रिप्लेस विद द सोडियम ब्रोमाइड। लास्ट एंड सो बघा, ऍटमॉस्फेरिक कंटॅमिनेशन मध्ये जे प्रिव्हियसली पण हा पॉइंट आपण डिस्कस केलाय की ऍटमॉस्फिअर मध्ये म्हणजे जिथं तुम्ही फायनल प्रोडक्ट बनवताय त्या एरियामध्ये जे पण ऑक्सिजन, म्हणजे आपल्याला माहिती की एन्व्हायरमेंट मध्ये बरेच गॅसेस आपल्याला ऑब्झर्व होतात, त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे, कार्बन डायऑक्साइड आहे, व्हेरियस गॅसेस तिथे इन्व्हॉल्व्ह होणार आहेत.
मग एखादी रिॲक्शन तिथं होताना पण त्या रिॲक्शन मधून गॅसेस काय होत आहेत, बाहेर पडतात. मग ते कुठे जाणार आहेत, ऍटमॉस्फिअर मध्येच जाणार आहे. त्यामुळं नेक्स्ट ज्यावेळेस आपण एखादं प्रोडक्ट बनवत असू किंवा सेम प्रोडक्ट बनवताना फायनल स्टेप ज्यावेळेस येते त्यावेळेस हेच ऍटमॉस्फिअर मधले गॅसेस आहेत ते आपल्या फायनल प्रोडक्ट सोबत काय करतायत, रिॲक्ट करतायत आणि तिथं प्रोडक्ट मध्ये आपल्याला इम्प्युरिटी ऑब्झर्व होती. द ऍटमॉस्फिअर कंटामिनेशन लाईक अ डस्ट, आर्सेनिक, कार्बन डायऑक्साइड, पोलन ग्रेन अँड वॉटर वेपर मे कंटामिनेट द फायनल प्रोडक्ट. म्हणजे ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे पण आपल्याला डस्ट किंवा व्हेरियस गॅसेस तिथे प्रेझेंट असतात ते गॅसेस असतील किंवा आर्सेनिक, पोलन ग्रेन किंवा वॉटर वेपर हे काय होतं तिथं आपल्याला ऑब्झर्व होतात आणि ते काय करतात आपल्या फायनल प्रोडक्टला कंटॅमिनेट करतात. आणि त्यानंतर नेक्स्ट आहे अडल्ट्रेशन. सो अडल्ट्रेशन मध्ये जे सिमिलर नेचरचे जे सबस्टन्स असतात त्या सिमिलर नेचरच्या सबस्टन्सला मिक्स केलं जातं. जसं की फॉर एक्झाम्पल पोटॅशियम ब्रोमाइड हे आपल्याला पाहिजे आहे, पण त्या पोटॅशियम ब्रोमाइड सो व्हॉइस इज ऑडिबल. Yes, Yes, ma'am. ma'am. पोटॅशियम ब्रोमाइड सोबत आपण सोडियम ब्रोमाइड हे मिक्स असं बघतोय. मीन्स तिथं काय केलंय, अडल्ट्रेशन तिथं झालेलं आहे. म्हणजे ते जे फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्ये नियर अबाउट सिमिलर नेचरचं असणारं प्रोडक्ट दुसरं चिपियर प्राइसचं प्रोडक्ट आपण तिथं मिक्स होताना बघतोय. म्हणजे जे पण आपण इन्ग्रेडियंट यूज करतोय ते प्रोडक्ट प्रिपेअर करताना ते इन्ग्रेडियंट 100% प्युअर फॉर्म मध्ये असेल असं काही नाही. सो ते असतानाच बेसिकली इन्ग्रेडियंट अडल्ट्रेट असल्यामुळं आपल्या फायनल प्रोडक्ट मध्ये आपल्याला इम्प्युरिटीज ऑब्झर्व होत आहेत. सो नेक्स्ट आहे स्टोरेज कंडिशन. Important parameter is the storage condition. Yes, आपके घर में लड्डू आते हैं तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो क्या, जहाँ पे चींटियां विटियां आ रही है, मक्खी आ रही है, नहीं, प्रॉपरली स्टोर करते हो. देन कुछ अगर आपने आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक लाया होगा तो उसको कैसे ओटे पे रखते हो क्या, किचन बेस पे रखते हो क्या, नहीं, हम फ्रीजिंग करते हैं. मतलब स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट कि आफ्टर स्टोरेज या आफ्टर हम कुछ टाइम के बाद अगर उसको यूज करना चाहे तो वो प्रॉपरली रहना चाहिए. तो वही हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या मेडिसिनल थिंग्स है उसको भी प्रॉपर स्टोरेज करना जरूरी है, अदरवाइज देयर इज अ केमिकल इंटरेक्शन और मे बी डिटोरेशन. तो वही लिखा है इफ देयर इज अ इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दे मे बी अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन. अगर इम्प्रॉपर अगर स्टोरेज होता है तो देयर मे बी अ केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबिलिटी है. क्या होता है, उसका एग्जाम्पल है आयोडीन का. आयोडीन ये कॉर्क एंड रबर और सब मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है. देयरफॉर इट शुड बी स्टोर्ड इन अ ग्लास बॉटल. इसलिए उसको हम ग्लास बॉटल और ग्लास टॉपर में रखेंगे. नेक्स्ट इज द फेरस सल्फाइड. फेरस सल्फाइड ऑन एक्सपोजर टू एयर अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म अ फेरस सल्फेट. फेरस सल्फाइड है, सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू द फेरस सल्फेट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन. Therefore, it should be stored in tightly closed container. तो इस तरीके से आज हमने रेस्ट ऑफ द पॉइंट. सो बघा स्टोरेज कंडिशन मध्ये जर जेव्हा पण तुम्ही फायनल प्रोडक्ट सगळे प्रिकॉशन घेऊन सगळ्या इम्प्युरिटीज अवॉइड होतील ह्याची काळजी घेऊन जरी तुम्ही बनवलं आणि आफ्टर ते प्रिपरेशन जर तुम्ही स्टोर व्यवस्थित नाही केलं तरी पण ते प्रोडक्ट काय होणार आहे, कंटॅमिनेट होणार आहे. त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज परत तुम्हाला यूज करतानाच्या टायमिंगला दिसायला लागतील ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज. सो स्टोरेज कंडिशन मध्ये काय आहे की जर ते जे प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्टचं स्टोरेज कंडिशन तुम्हाला चेक करायची आहे. कोणत्या एन्व्हायरमेंट मध्ये ते जास्त काळ टिकून राहील हे तुम्हाला चेक करायचं आहे. इफ देअर इज अ improper storage of pharmaceutical product they may undergo chemical decomposition. म्हणजे काय होतं ज्यावेळेस तुम्ही इम्प्रॉपर असं स्टोअर करता त्यावेळेस त्याच्या आतमध्ये असणारे जे काही केमिकल्स आहेत ते केमिकल परत एकदा एकमेकांसोबत रिॲक्ट करतील आणि स्वतःमध्ये फिजिकल केमिकल चेंजेस घडवून आणतील आणि त्यामुळं आपल्याला जे त्या फायनल प्रोडक्ट कडून जी ऍक्टिव्हिटी आपल्याला पाहिजे आहे ती ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपल्याला चेंजेस होताना दिसतात. सो एक्झाम्पल आयोडीन रिॲक्ट विथ कॉर्क, रबर अँड सम मेटल. हे जे आयोडीन आहे ते आयोडीन कॉर्क, रबर किंवा रिॲक्ट होताना आपल्याला
सो रिॲक्ट होताना आपल्याला दिसते. त्यामुळं आपण आयोडीन रिलेटेड जेवढं पण प्रिपरेशन आहे ते आपण कशामध्ये स्टोअर करतोय, ग्लास बॉटल मध्ये स्टोअर करतोय. सो नेक्स्ट आहे एक्झाम्पल फेरस सल्फाइड ऑन एक्सपोजर टू एअर अंडरगो ऑक्सिडेशन. जे फेरस सल्फाइड आहे त्याला जर आपण एअर सोबत ऍटमॉस्फिअर सोबत जर एक्सपोज केलं जास्त वेळासाठी तर ते काय करते, स्वतःच ते कंपाऊंड ऑक्सिडेशन ची रिॲक्शन घडवते. सो टू फॉर्म फेरिक सल्फेट. त्यामुळे फेरस सल्फाइडचं कन्व्हर्जन फेरिक सल्फेट मध्ये होते. Therefore, it should be stored in a tightly closed container. So atmosphere सोबत ते रिॲक्ट होते त्यामुळे आपल्याला ऑक्सिडेशनची प्रोसेस होते त्याच्यामध्ये, त्यामुळे आपल्याला टाइटली क्लोज्ड कंटेनर मध्ये त्याला स्टोअर करायचं आहे. सो फेरस सल्फाइड इज अंडरगो ऑक्सिडेशन टू फॉर्म अ फेरिक सल्फेट. फेरिक सल्फेट मध्ये कन्वर्जन होते when we are exposing to the air for a longer period of a time. So हे समजले तुम्हाला सोर्सेस ऑफ इम्प्युरिटीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. हे एक लास्ट बीट राहिलाय तुमचा ह्या चॅप्टर मधला, बट टाइम तुमच्या लेक्चरचा टाइम आउट झालेला आहे त्यामुळे हे आपण नेक्स्ट रेग्युलर लेक्चरला तो लास्टचा बीट घेऊयात आणि आफ्टर दॅट सेकंड चॅप्टर आपण स्टार्ट करूया. सो इन टुडे सेशन वी रिवायझिंग द सोर्सेस ऑफ इम्प्युरिटीज. आपण काय केलं, जे काही प्रिव्हियस लेक्चरला जे झालं होतं सोर्सेस ऑफ इम्प्युरिटीज तेच आपण कन्सेप्ट जास्त ग्रास्प होण्यासाठी परत एकदा रिवाइज केले. सो आता कोणाला काही डाऊट आहे सोर्सेस ऑफ इम्प्युरिटी मध्ये? No, ma'am. No, ma'am. Okay, we will stop here. Thank you for your patience. आजच्या लेक्चरला आपण सोर्सेस ऑफ इम्प्युरिटीज रिवाइज केलं. सो इन नेक्स्ट लेक्चर लास्ट बीट आपण कव्हर करूयात आणि चॅप्टर कम्प्लीट करूयात. Okay, teacher.